Hello students, today we will learn Bezier curve. In this we cover topics parametric curve, interpolation versus approximation method of curve drawing, definition of Bezier curve, properties of Bezier curve, and at the last we will see an example of how we can construct a Bezier curve. Let's first of understand what is a parametric curve. Generally, we define if there are two terms x and y, we define y in terms of x. For example, y is equal to x square. So here we are defining y in terms of x. Same way, we can define x in terms of y, like x is equal to y square. Okay? But in some situations, we need a third parameter to define x and y. Let's take an example of speed and velocity. We need to draw a graph between speed and velocity, and we have to define speed in terms of time and velocity in speed of times. In that case, speed will be a function of time and velocity will also be a function of time. So we have to compute speed with respect to time and velocity with respect to time, and after that we have to draw a graph between speed and velocity. In some cases, we need a third parameter to define the two terms. Okay, so suppose we are taking the third parameter is t. In that case, x will be a function of t and y will also a function of t. So each value of t define point x, y, and x is defined as ft function of t and y is defined as function of t. Okay, so such equation that is defined with respect to a third parameter is called a parametric equation. तो ऐसा इक्वेशन जिसको डिफाइन करने के लिए हमें तीसरे पैरामीटर की जरूरत पड़ती है. ठीक है, फर्स्ट पैरामीटर इज एक्स, सेकंड पैरामीटर इज वाई, एंड वी नीड अ थर्ड पैरामीटर. वी आर सेइंग दैट द थर्ड पैरामीटर इज टी, and we are defining the first two terms x and y with respect to t. In that case, the equation now becomes a parametric equation because we are using a parameter, and the parameter is the third one. And इस पैरामीटर के करस्पॉन्डिंग, इस पैरामेट्रिक इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग जो कर्व क्रिएट होता है उसे हम कहते हैं पैरामेट्रिक कर्व. ओके, तो फॉर एवरी पैरामेट्रिक इक्वेशन देयर एग्जिस्ट ए पैरामेट्रिक कर्व. ओके, लेट्स सी एन एग्जांपल वेयर x इज डिफाइंड एज ए t स्क्वायर प्लस 1, यानी x t का एक फंक्शन है and y is also a function of t to t minus 1, and we have to draw a curve or graph between x and y. Okay, so let's see, we have to compute the value of x and y for different values of t. तो अगर इस टेबल को देखें तो t की वैल्यू -2, -1, -1/2, 0 और 1 के लिए हमने x और y को कंप्यूट किया हुआ है. आफ्टर कंप्यूटिंग x and y, we have to plot the curve for x and y. So now let's see, this is the curve between x and y, and x and y are defined with respect to a third parameter t. तो इक्वेशन क्या है? पैरामेट्रिक इक्वेशन है, और जो कर्व ड्रॉ हो रहा है करस्पॉन्डिंग टू पैरामेट्रिक इक्वेशन, इसे हम कहते हैं पैरामेट्रिक कर्व. ओके, तो वी आर लर्निंग पैरामेट्रिक कर्व बिकॉज बेजियर कर्व इज एक्चुअली ए पैरामेट्रिक कर्व. जो बेजियर कर्व होता है वो एक्चुअल में पैरामेट्रिक कर्व होता है. नाउ लेट्स सी what is the difference between interpolation versus approximation. So these are the two methods of drawing curve. So first of all, see what is a spline curve. Why we are seeing spline curve? Because Bezier curve is a spline curve. तो Bezier curve पैरामेट्रिक कर्व भी होता है और spline कर्व भी होता है. और spline कर्व क्या होता है? Spline curve is specified using a set of control points. तो किसी भी स्प्लाइन कर्व को हमें अगर रिप्रेजेंट करना है तो हमें बताना होता है कि कितने कंट्रोल पॉइंट्स हैं, और इन कंट्रोल पॉइंट्स का काम क्या होता है? दीज कंट्रोल पॉइंट्स डिसाइड्स द शेप ऑफ द कर्व, यानी इन कंट्रोल पॉइंट से कर्व का शेप डिसाइड होता है कि अब कर्व का शेप कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, सर्कुलर होगा, कैसा भी होगा, वो इन कंट्रोल पॉइंट्स के पोजीशन से डिसाइड होता है. ओके, तो जितने ज़्यादा कंट्रोल पॉइंट्स होंगे
उतनी ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम डिफरेंट टाइप्स के कर्व हम ड्रॉ कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर दीज टू मेथड्स, हाउ दीज टू मेथड्स एक्चुअली ड्रॉ ए कर्व। तो इंटरपोलेशन, in this method the curve passes through all of the control points, and just इसका अपोजिट अप्रोक्सीमेशन है, द कर्व passes through not all of the control points। तो इंटरपोलेशन मेथड में जो कर्व है वो जितने भी कंट्रोल पॉइंट्स हैं उन सब से होके पास होता है, और अप्रोक्सीमेशन मेथड में जो कर्व है वो सारे कंट्रोल पॉइंट्स होके पास नहीं होता है, वो उनके नियर बाई वैल्यूज से होके पास होता है। दिस इज द डिफरेंस। इन अप्रोक्सीमेशन मेथड द कर्व actually passes through the nearby values of the control points, not the actual control points. If you look at this curve, this is an example of interpolation। तो यहाँ पे जो रेड डॉट बने हुए हैं, these red dots are the control points। तो बेसिकली there are 6 control points हैं यहाँ पे, और जो कर्व ड्रॉ हुआ है वो सभी 6 कंट्रोल पॉइंट से होके पास हो रहा है। तो दिस इज व्हाट द इंटरपोलेशन मेथड, where the curve passes through all of the control points। But अगर हम approximation method के थ्रू कर्व ड्रॉ करते हैं तो you can see that there are 5 control points, 5 dots दिख रहे हैं रेड से, there are 5 control points and curve is not passing through the control points but it is passing through nearby of the control points। तो कर्व जो है कंट्रोल पॉइंट से पास ना होके उसके नियर बाई वैल्यूज के थ्रू होके पास हो रहा है। दिस इज व्हाट द अप्रोक्सीमेशन मेथड। ओके, तो कंट्रोल पॉइंट से ना पास होके उसके किसी आसपास के वैल्यू से होके कर्व पास हो रहा है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंटरपोलेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। इन इंटरपोलेशन द कर्व passes through all of the control points, and in approximation the curve passes through not all of the control points। तो जो हमारा बेजियर कर्व है वो यूज करता है अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो हमारे यहाँ 3 प्रॉपर्टी हमने बेजियर कर्व की देख ली है। पहला कि बेजियर कर्व का जो इक्वेशन होता है वो पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है। बेजियर कर्व एक स्प्लाइन कर्व होता है, इसलिए यहाँ पे बेजियर कर्व को डिफाइन करने के लिए हमें कंट्रोल पॉइंट चाहिए होंगे, और जो मेथड यूज करता है बेजियर कर्व वो है अप्रोक्सीमेशन मेथड। ओके, तो नाउ लेट्स सी व्हाट इज ए बेजियर कर्व। तो बेजियर कर्व में बी डिफाइंड एज, बेजियर कर्व इज पैरामेट्रिक कर्व डिफाइंड बाय ए सेट ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स। जो हमने देख लिया है कि बेजियर कर्व एक पैरामेट्रिक कर्व होता है जिसको डिफाइन करने के लिए वी नीड कंट्रोल पॉइंट्स। ओके, 2 पॉइंट्स आर एंड्स ऑफ द कर्व। तो जितने भी कंट्रोल पॉइंट्स होंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमने बताया है कि बेजियर कर्व अप्रोक्सीमेशन मेथड को फॉलो करता है, एंड अप्रोक्सीमेशन मेथड में जो कर्व होता है वो कंट्रोल पॉइंट्स के ना पास होकर उसके नियर बाई वैल्यूज से पास होता है। बट इन केस ऑफ बेजियर कर्व जो फर्स्ट और लास्ट पॉइंट होगा उसके थ्रू कर्व पास होगा, यानी फर्स्ट और लास्ट पॉइंट से कर्व पास होगा और बाकी के पॉइंट से वो नियर बाई वैल्यू से पास होगा। तो बेजियर कर्व passes through the first and last point and passes by nearby values of the rest of the control points। okay, other points determine the shape of the curve। तो जैसा कि बेजियर कर्व एक स्प्लाइन कर्व है और स्प्लाइन कर्व का जो शेप है वो डिसाइड होता है कंट्रोल पॉइंट से। तो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को छोड़ के जो रिमेनिंग कंट्रोल पॉइंट्स होंगे वो डिसाइड करेंगे कि बेजियर कर्व का शेप कैसा होगा। ओके, you can see some examples of Bezier curve। We have drawn 3 curves that are Bezier। In the first there are 3 control points P0, P1, P2। okay, you are seeing that the curve is passing through P0 and P1, P2 because these are the first and last points। this is the property of Bezier curve। वो पहले आखिरी पॉइंट से तो होकर पास होगा, बट जो रिमेनिंग पॉइंट्स है उनके आसपास के वैल्यू से पास होगा, ना कि एग्जैक्ट कंट्रोल पॉइंट से। You can see that the curve is not passing through P1। okay, but in the second case we have taken 4 control points and you look that the curve is like that। okay, and the same case also we have taken 4 control points, but the shape of the curve is different from the figure number 2। why? because the position of control points are different। तो आप कंट्रोल पॉइंट की जो पोजिशनिंग है उसको चेंज करके आप कर्व का शेप चेंज कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज रिफ्लेक्टेड बाय
figure number B and figure number C. There are 4 control points in both cases, but the curve is different because the positions of control points is different. Okay. Now let's see properties of Bezier curve. The first property is the most important property. Bezier curve is always contained within a polygon called as convex hull of its control points. What is the convex hull of points? किसी convex hull होता क्या है? तो जैसे आप पे 4 कंट्रोल पॉइंट्स हैं, देख रहे हैं B0, B1, B2, B3. अगर इन चारों पॉइंट्स का कॉन्वेक्स हल निकालना हो तो व्हाट विल बी द कॉन्वेक्स हल ऑफ दीज 4 पॉइंट्स. तो हमें करना क्या होता है कॉन्वेक्स हल निकालने के लिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ ए पॉलीगन. ठीक है, यूजिंग दीज 4 कंट्रोल पॉइंट. जो आपको इसमें डॉटेड दिख रहा है दिस इज द पॉलीगन. कि B0 से B1, B1 से B3 और B3 से B2 और B2 से B0. तो एक पॉलीगन बनाया गया है और इस पॉलीगन के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं दीज पॉइंट्स कंस्टिट्यूट द कॉन्वेक्स हल ऑफ द कंट्रोल पॉइंट्स. तो इन पॉइंट्स के थ्रू होकर ही बेजियर कर्व पास होगा. दूसरे शब्दों में और सरल शब्दों में समझना हो तो जो बेजियर कर्व होगा वो जो पॉलीगन डिस्क्राइब हो रहा है बाय द कंट्रोल पॉइंट्स उसके अंदर ही लाई करेगा. तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि जो 4 पॉइंट से मिलकर जो पॉलीगन बन रहा है बेजियर कर्व उसी के अंदर ड्रॉ हुआ है. दिस इज द मीनिंग ऑफ कि बेजियर कर्व इज कंटेन्ड within a polygon called as convex hull of the control points. So this is the meaning of the property that the Bezier curve lie within the perimeter of the polygon made by control points. यानी control points के मिला के जो पॉलीगन बनेगा बेजियर कर्व उसी पॉलीगन के अंदर ही लाई करेगा, उस पॉलीगन के बाहर लाई नहीं करेगा. दिस इज दैट प्रॉपर्टी. ओके. The next property is the degree of the polynomial defining the curve segment is 1 less than the total number of control points. Okay. तो डिग्री ऑफ द बेजियर कर्व कैसे डिसाइड होगी? इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स -1. तो डिग्री जो होगी कंट्रोल पॉइंट से एक कम होगी. अगर नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स 4 हैं तो डिग्री 3 होगी. तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट डिग्री ऑफ बेजियर कर्व. ओके. तो अगर डिग्री 2 होगी तो जो कर्व होगा वो क्वाड्रेटिक होगा क्योंकि यहाँ पे जो पावर होगी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर जो होगी 2 होगी. अगर कंट्रोल पॉइंट्स 4 होंगे तो डिग्री 3 होगी. इसका मतलब जो बेजियर कर्व होगा वो क्यूबिक बेजियर कर्व होगा क्योंकि जो पैरामेट्रिक इक्वेशन क्रिएट होगी उसमें हाईएस्ट पावर जो होगी टी की वो 3 होगी. द ऑर्डर ऑफ द पॉलिनोमियल डिफाइनिंग द कर्व सेगमेंट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स. तो ऑर्डर कैसे डिसाइड करेंगे? तो ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स. तो जितना नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स होंगे उतना ही ऑर्डर होगा. तो किसी भी न्यूमेरिकल में किसी भी क्वेश्चन में आइदर यू हैव बीन गिवन द कंट्रोल पॉइंट्स और द ऑर्डर ऑफ द बेजियर कर्व. तो यूजिंग दिस यू कैन डिसाइड द डिग्री ऑफ द बेजियर कर्व. नाउ व्हाट इज द बेजियर कर्व इक्वेशन? A Bezier curve is parametrically represented by the equation that is in the rectangular area. ठीक है, यह PT. ओके. तो P is the point on the Bezier curve, T is the parameter. और एक चीज़ ध्यान रखना है कि Bezier curve के सिनेरियो में जो पैरामीटर है T उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही होती है. You cannot take any value for the T. The value of T will be बिटवीन 0 एंड 1. इसके बीच में ही आपको जब भी वैल्यू लेनी होगी टी की 0 और 1 के बीच में लेनी होगी. ठीक है. देन देयर इज सिग्मा i 0 to n और यहाँ पे n क्या है? डिग्री ऑफ द कर्व. ठीक है. तो डिग्री हम कंट्रोल पॉइंट से भी निकाल सकते हैं और ऑर्डर ऑफ द बेजियर कर्व से भी निकाल सकते हैं. तो n इज द डिग्री. और जो b कैपिटल B i है दिस इज द ith कंट्रोल पॉइंट ऑफ द बेजियर कर्व. तो हेयर this I represents the ith control point. So B0 is the first control point, B1 is the second control point, Bi is the ith control point. And J and I T जो है this is we called a blending function or in some books it is written as basis function. So this is blending function is there. और इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है
दैट इज CNI T द पावर I 1 माइनस T होल पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे CNI है, ये आपने पढ़ा होगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, ये कॉम्बिनेशन है CNI, और ये कैलकुलेट होती है n फैक्टोरियल अपॉन I फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 I फैक्टोरियल। In that case, in this you can calculate CNI, और एक बार आपने CNI कैलकुलेट कर लिया तो यू कैन कैलकुलेट ब्लेंडिंग फंक्शंस फॉर ऑल possible values of t. In this way, this is a parametric equation of the Bezier curve, and I have explained all the terms using in this Bezier curve. Okay. Now, here we are discussing a special case of Bezier curve that is very popular and generally asked, that is cubic Bezier curve equation. तो यहाँ पे क्यूबिक बेजियर कर्व है, इसका मतलब कि जो डिग्री होगी वो 3 होगी, तो नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स कितने होंगे, 4 होंगे, क्योंकि डिग्री जो होती है इक्वल टू कंट्रोल पॉइंट्स माइनस 1। तो अगर डिग्री 3 है तो कंट्रोल पॉइंट्स 4 होंगे। ओके, डिग्री हमेशा कंट्रोल पॉइंट से 1 कम होती है। तो यहाँ पे जो आपके नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स होंगे 4 हैं, इसलिए डिग्री यहाँ पे 3 है। तो सिग्मा की वैल्यू I 0 से 3 तक जा रही है, यानी 0 1 2 3। क्यों? क्योंकि देयर आर 4 कंट्रोल पॉइंट्स B0 B1 B2 एंड B3। There are 4 control points. Okay. Now, how we can calculate PT? Okay. तो इक्वेशन नंबर 1 है, उसको आप देखें कि ये इक्वेशन कैसे लिखी गई है। तो जो ऊपर इक्वेशन दी गई है सिग्मा फॉर्म में, उसमें पहले आप I की वैल्यू 0 रखें, देन I की वैल्यू 1 रखें, देन I की वैल्यू 2 रखें, एंड देन I की वैल्यू 3 रखें। When you put I equal to 0, this become B0 J 30T हो जाएगा, प्लस when I is equal to 1 it becomes B1 J31T। the same way when I becomes 2 it becomes B2 J32T, and for I is equal to 3 it becomes B3 J33T। this is equation number 1. okay, now we have to compute all the blending functions। ठीक है, J30 J31 J32 and J33। okay, and what is the formula of calculating blending function? It is written above ऊपर just before the, आप देख सकते हैं blending function कैसे लिखा गया है, CNI T की पावर I 1 माइनस T का होल पावर n माइनस I। ठीक है, CNI क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन I फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस I का होल फैक्टोरियल। दिस इज व्हाट दैट, एंड यू पुट in this the value of n as 3 and the value of I is 0 in case of calculating J30। यानी J30 कैलकुलेट करने के लिए n की वैल्यू आपको 3 रखनी है और I की वैल्यू 0 रखेंगे, तो आपको J30 T की वैल्यू मिलेगी, जो कि कंप्यूट होकर आएगी 1 माइनस T का होल क्यूब। ओके, यू कैन कैलकुलेट योरसेल्फ, इट्स वेरी इजी। द सेम वे यू कैन कैलकुलेट 3 1T वेयर n की वैल्यू 3 पुट करनी है और I की वैल्यू आपको पुट करनी है 1, एंड यू गेट द इक्वेशन 3T मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस T का होल स्क्वायर। द सेम वे यू कैन कंप्यूट J32 एंड J33, और इन चारों वैल्यूज जो ब्लेंडिंग फंक्शन कंप्यूट किए हैं उनको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। तो PT आ जाएगा B0 1 माइनस T स्क्वायर, B1 3T 1 माइनस T का होल स्क्वायर, प्लस B2 3T स्क्वायर 1 minus T plus B3 T cube। So this equation is the QG-Bezier curve equation। So this is the way you can compute the equation of any Bezier curve given the control points। ठीक है, सिर्फ आपको ब्लेंडिंग फंक्शंस अकॉर्डिंग टू फार्मूला कैलकुलेट करना है और उसको पुट करना है, एंड फाइनली यू विल गेट द बेजियर कर्व इक्वेशन दैट कम्स इन द पैरामीट्रिक फॉर्म। यहाँ पे T जो है पैरामीटर है और इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है। नाउ इन द लास्ट सेक्शन वी विल सी एन एग्जांपल हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट ए बेजियर कर्व। यू आर गिवन ए 4 कंट्रोल पॉइंट्स B0 B1 B2 एंड B3। ओके, और द प्रॉब्लम इज आस्किंग डिटरमाइन एनी 5 पॉइंट्स लाइंग ऑन द कर्व। आपको कोई 5 पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं जो कर्व पे लाई करते हो, एंड एल्सो ड्रा ए रफ स्केच ऑफ द कर्व, और आखिर में आपको एक रफ स्केच
बेजियर कर्व का ड्रॉ करना है। ओके, नाउ हाउ टू proceed for the solution? First of all, you have to find the degree because you have to apply the degree. The degree is equal to control points minus 1. तो number of control points कितने हैं? 4 हैं, तो 4 minus 1 3. तो degree now it becomes 3. It means the Bezier curve is a cubic Bezier curve. Okay. Now next is this is the equation of cubic Bezier curve जो हमने पिछली स्लाइड में इसको हमने कंप्यूट किया था. This is the Bezier curve equation for a डिग्री इज इक्वल टू 3 और कंट्रोल पॉइंट इज इक्वल टू 4. ओके, तो लास्ट स्लाइड में ये इक्वेशन हमने अभी कंप्यूट की है. नाउ इसमें B0, B1 और B2, B3 की वैल्यू पुट कर दें. तो व्हाट इज गिवन B0 इज गिवन 1 0, यानी x B0 पॉइंट की x वैल्यू 1 है, y वैल्यू 0 है. द सेम वे B1 इज गिवन एज 3 3, B2 इज गिवन एज 6 3 एंड B3 इज गिवन एज 8 1. तो ऑल दीज वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट की गई हैं. नाउ द PT नाउ बिकम्स लाइक दिस वन यू आर सीइंग इन द ऑन द स्लाइड. ओके, नाउ योर इक्वेशन इज नाउ ट्रांसफॉर्म लाइक दिस वन. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वंस यू गेट द इक्वेशन ऑफ द बेजियर कर्व, यू हैव टू कंप्यूट द पॉइंट्स ऑन द कर्व. एंड इन द क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कोई 5 पॉइंट्स आपको फाइंड आउट करने हैं कर्व ड्रॉ करने के लिए, और वो 5 वैल्यूज कैसे मिलेंगे आपको. तो जो टी है, जो पैरामीटर टी है, उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है. तो आपको कोई भी 5 वैल्यू अपने चॉइस के हिसाब से ले लेनी है. ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर लिए हैं तो 5 वैल्यूज हमने कंसिडर किए हैं टी की. वो है 0, 0.2, 0.5, 0.7 एंड 1. तो मैंने इस केस में ये 5 वैल्यू दी है. आप कोई भी 5 वैल्यू अपने हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं. ओके, और इन 5 वैल्यूज पे आपको PT कैलकुलेट करना है फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ बेजियर कर्व. तो फॉर t इज इक्वल टू 0. ओके, तो अगर t इज इक्वल टू 0 रखें तो पिछले स्लाइड में जो हमने इक्वेशन निकाली है उसमें अगर हम t को 0 रखें तो दिस इज नाउ बिकम द इक्वेशन P0 हो जाएगा. 1 माइनस टी का होल क्यूब था, तो 1 माइनस टी की वैल्यू 0 रखेंगे तो 1 माइनस 0 का होल क्यूब एंड सो ऑन, एंड फाइनली यू गेट द P0 वैल्यू एज 1 0. तो फर्स्ट पॉइंट ऑन द कर्व यू गेट 1 0, वैल्यू ऑफ x इज 1 एंड द वैल्यू ऑफ y इज 0. इन द सेम वे यू हैव टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ पॉइंट ऑन द कर्व पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू 0.2. तो द सेम उसी इक्वेशन में अब हम t की वैल्यू 0.2 रखेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, और नेक्स्ट पॉइंट हम कैलकुलेट करेंगे एट t इज इक्वल टू 0.2. तो ऑन द पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन द बेजियर कर्व इक्वेशन, फाइनली यू गेट द पॉइंट एज 2.304 एंड 1.448. यानी जो नेक्स्ट पॉइंट मिला है इसमें वो बेजियर कर्व पे जो लाई करेगा उसकी x की वैल्यू है 2.304 एंड y की वैल्यू है 1.448. यू कैन डू इट योर सेल्फ एंड चेक कर सकते हैं. ओके, सिमिलरली इसी तरीके से आप जो रिमेनिंग 3 पॉइंट्स हैं टी की, t इज इक्वल टू 0.5, t इज इक्वल टू 0.7 एंड t इज इक्वल टू 1, उसको भी आपको इसी तरीके से कैलकुलेट करना है. तो इस तरीके से आप 5 पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, दैट फ्रॉम दैट पॉइंट द बेजियर कर्व विल पास. ओके, नाउ दिस इज द टेबल आफ्टर कैलकुलेटिंग द पॉइंट्स. तो P0 यानी t की वैल्यू 0 थी तो x की वैल्यू हमने 1 कैलकुलेट की, y 0 है. जब t की वैल्यू 0.2 थी तो हमने जो x की वैल्यू कंप्यूट की है कर्व पे वो 2.304 है, y की 1.448 है. ये हमने आपको इसमें स्लाइड में दिखाया है शो करके. बाकी जो 3 पॉइंट्स एज फॉर लेफ्ट किया आपके लिए वो भी यहाँ कंप्यूट करके दिखाया है. 0.5 पे वैल्यू, 0.7 पे, 0.1 पे क्या वैल्यू आएंगी वो यहाँ पे इस टेबल में यू कैन सी दैट. तो ये आपके पास बेजियर कर्व के 5 पॉइंट्स आ गए जिसके थ्रू कर्व आपको प्लॉट करना है. एंड नाउ दिस इज द रफ स्केच, यू कैन सी दैट ये दिस इज योर बेजियर कर्व ऑन XY प्लेन. तो आप यहाँ पे देखेंगे 4 कंट्रोल पॉइंट्स हैं, B0, B1, B2 एंड B3. ये आपको ऑरेंज कलर में शो हो रहा है. जो ऑरेंज कलर में पॉइंट्स दिख रहे हैं वो आपके
कंट्रोल पॉइंट्स हैं और उनको हमने जोड़ा है ताकि आप ये जान सकें कि कॉन्वेक्स हल कैसा बनेगा। मैंने बताया था कि जो कंट्रोल पॉइंट्स हैं उनको अगर आप मिला के एक पॉलीगन बनाते हैं तो उस पॉलीगन के अंदर ही कर्व लाई करेगा। दैट पॉलीगन इज एक्चुअली द कॉन्वेक्स हल फॉर द बेजियर कर्व। ओके, और फिर जो ये आपका जो ब्राउन कलर से कर्व ड्रॉ हो रहा है, दिस इज योर द बेजियर कर्व। ब्राउन कलर पे जो पॉइंट्स हैं ये हमने अभी कैलकुलेट किए हैं। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट था 1 0। तो हमने बताया था कि बेजियर कर्व की एक अलग और प्रॉपर्टी है कि ये फर्स्ट और लास्ट पॉइंट से पास होता है। ओके, और रिमेनिंग पॉइंट्स के अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज से पास होता है। तो फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इसका वही होगा जो आपको प्रॉब्लम में मेंशन है, दैट इज द कंट्रोल पॉइंट है। और बाकी जो 3 पॉइंट्स हमने कैलकुलेट किए हैं, एट t इज इक्वल टू 0.0, t इज इक्वल टू 0.5 एंड t इज इक्वल टू 0.7। तो दिस इज द बेजियर कर्व इन द डार्क ब्राउन कलर। So this is the way you can draw the Bezier curve. Okay, so hope you will be able to understand what is a parametric curve, what is the difference between interpolation and approximation method, what is a Bezier curve, okay, and what are the properties of Bezier curve, and if you are given some problem on the basis of control points, you can be able to draw the Bezier curve. So hope you will be able to understand all these topics. Thank you, and there is a humble request, please like, share and subscribe. Okay, thank you.